हरे कृष्णा। मैं थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के बोलने के लिए कोशिश करूंगा। सो इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू कम अगेन टू श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, आई मीन राधा पारसारथी मंदिर, and to associate with the devotees here. Today's topic is a very interesting topic, the blind man and the lame man. Prabhupada gave us many sayings. Books are the basis, purity is the force, preaching is the essence, utility is the principle. तो आज का जो लीलामृत का चैप्टर में है द लेम मैन एंड द ब्लाइंड मैन. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट, लेम मैन एंड द ब्लाइंड मैन. इसके पीछे जो डीप थॉट्स है वो हमको समझने की जरूरत है. और दो प्रभुपाद जी ऐसे बताया, और वो भी बड़े थॉटफुल है, क्योंकि हमारा सोसाइटी है इंटरनेशनल सोसाइटी. इंटरनेशनल बनने के लिए राष्ट्रवाद काम नहीं करेगा. सामाजिकवाद, सोशलिज्म काम नहीं करेगा. कैपिटलिज्म काम नहीं करेगा. एक देश में जो चलता वो दूसरे देश में चलता नहीं. टू क्लेम इंटरनेशनल, इट रिक्वायर्स ए वेरी हाई कॉन्शियसनेस. एमएनसी भी इंटरनेशनल होते हैं. आप बोल सकते हैं प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो, डजन्स ऑफ एमएनसीज आर देयर, कौन सा हाई कॉन्शियसनेस है उनके पास, बट दे आर इंटरनेशनल. गुड़गांव में देखिए कितना है एमएनसीज, दे आर ऑल्सो इंटरनेशनल. सो हाउ वी कैन क्लेम इंटरनेशनल सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम एमएनसी. आपने कितने लोग एमएनसी में काम किए हैं? कोई काम किया? काफी लोग काम किए. ठीक है. तो एमएनसीज आर इंटरनेशनल, इस्कॉन इज इंटरनेशनल. सो व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, बट आई एम नॉट आस्किंग दैट. आई एम सेइंग why we are better than working for an MNC. Why working for ISKCON is better than working for an MNC. Both are international. What is missing in MNCs that is available in Krishna consciousness? Huh? Kya? Spiritual? No, not like that. You have to say, no, that is a very simple way. What is it? What is wrong with working with MNC? Good. Okay. Something more? Huh? Oh, that may not be true. Nowadays, you have to have a mixed. Now there is a law. Diversity. It is called plurality. Plurality and inclusivity. Okay? So that's not quite right. Okay. Yes. You have to think deeply to understand this lame man and the blind man, and unity and diversity, and something more is there. I'll come to that later. Not good enough. They can fire you.
Your job is not guaranteed. Kauntaya pratijanihi. That is the first difference. Okay? That is the... You can get money, but can you get love? Is there any love when working for MNC? No love. Sometimes they don't even pay you well. Depends on the market. And people themselves, they don't like to work in one place. Ultimately, all economic development is not satisfying to the heart and the soul. And it is impossible to please the boss in MNCs. Impossible. You may work for the MNC, but your family may not be interested in that. And like in every job, there is retirement. If you are not fired, you have to retire. So Prabhupada said, this example, unity in diversity, for ISKCON to flourish, we have to fully appreciate how we are united, even though there is many varieties of devotees. There are varieties of devotees. So Prabhupada wants us to remain united preaching mission. Purity is the force, but that is your individual effort. How pure you want to be, it is up to you. Nobody can force you. Nobody can compel you to be pure. That is up to you. But unity in diversity is a common call. It's a collective requirement, not individual requirement. It's a collective requirement. Prabhupada very much liked, in fact, the entire Mayapur festival arrangement, Prabhupada said, this festival arrangement where devotees come from all over the world is to make unity among diversity. This is what Prabhupada said about conducting Mayapur festival with international devotees. We want to make unity among diversity. And Prabhupada found what is wrong with so-called United Nations. How many of you heard about United Nations? Prabhupada exposed the fault. You cannot have unity without agreement. In the material variety, there is variety, no doubt, but among them there is no agreement. Countries do not agree with each other. We know families do not agree, individuals do not agree. But countries don't agree with each other, even though they think they have a United Nations Council, UNO. It's a very serious. This is why we are international society. We have to strive to have unity with diversity, with variety, with agreement. That starts in a temple also. And that starts in, like you have this NCR or zone, North Indian zone, or, and then the whole country, and then the whole Asia. You can see Prabhupada's vision. Unity
with diversity, unity with variety, unity with agreement. Are you able to follow that? How many of you are able to follow that? And how many of you are agreeing with that? How many of you are agreeing with what Prabhupada is saying? Huh? Hari Bol! और जोर से और जोर से Srila Prabhupada ki. That is how we can do our kirtan. Kirtan is the shining example. Now recently you had a Maha Kirtan. I was told there are 15,000 people. Brihat Mridanga. We have to come up to Prabhupada's expectation. Individually thoughtful, collectively surrendered. क्या है? Collectively obedient, submissive, and individually thoughtful. That is the beauty of layman and the blind man. Cooperation. Andha Pangu Nyaya. So, agreement in variety. For example, we have 12 Mahajans. They are all individually great. 12 Mahajans are individually great, exalted. Variety. There is so much variety in the 12 Mahajans. But they have one mission, one vision. That, like Prabhuji was saying, oh, we are not just international, we are more than that. But right now, we call our society international society. And Prabhupada wanted to, Prabhupada called, make unity, he said, make unity among diversity. Then Mayapur festival is for that, he said. It's very exciting when you see people from all over the world. Why do they come? We say they are coming to do kirtan, Shravan Kirtan. But there is a thought process behind that. They're not simply coming. There's a difference. People come to Kumbh Mela also. More people come to Kumbh Mela than to Mayapur festival. But there is no agreement. There is no unity. In Kumbh Mela, there is no unity. There is no agreement. There are so many places where people congregate. But there is no unity. There is no agreement. We are different from that. So Prabhupada's wish that we should have a united cooperative preaching mission from all over the world. That dream is in our hands, how to make it real. That dream of Prabhupada, how to make it real, is in our hands. We should do that. So what we will do, we will read for 2-3 pages, and then this quote that Prabhupada speaking about layman and the blind man, it's coming after 2 pages. So we will read for 2 pages and then continue. यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता हिरथा प्रकाशन्ते महात्मनः। उन महान आत्माओं के अंदर जिनकी भगवान और गुरु दोनों में निश्चित भक्ति है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार स्वयं प्रकट हो जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। अतः जो
गुरु पूजा हम कर रहे हैं वह आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है, ये असली शिक्षा है। आप प्रद्यन गाते हैं, गुरु मुख पद में वाक्या चित्ते ते करिया ए क्या। जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि का उपहार दिया है वे जन्म जन्मांतर से मेरे भगवान हैं। मैं आपसे निसंकोच कहता हूँ, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, मेरा विश्वास है कि वह मेरे गुरु महाराज के वचनों में मेरे विश्वास के कारण मिली है। आप भी इसे जारी रखें, तब आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तब श्रील प्रभुपाद ने पूरी 12 मंजिली इमारत का चक्कर लगाया। वे बहुत कम बोले, किंतु जो कुछ उन्होंने देखा लगभग सभी को अनुमोदित किया। ऐसा लगता था कि उनके शिष्य उनकी ओर से सारी व्यवस्था ठीक से देख रहे थे। उनका आवास सुव्यवस्थित था, बैठक के लिए अलग कक्ष था और विश्राम के लिए अलग। अपने डेस्क के सामने बैठकर उन्होंने पूछा, तो न्यूयॉर्क में मुझे फिर रुकना है? मंदिर के अध्यक्ष आदि केशव स्वामी ने कहा, श्रील प्रभुपाद, ये आपकी विजयपूर्ण वापसी है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा मनोभाव ऐसा ही है। भक्तों को उत्सुकता थी कि वे कमरों की विशेषताएं बताएं, जैसे खिड़की से दिखाई देने वाले दृश्य और अपेक्षाकृत शांति। रामेश्वर स्वामी ने कहा, अनुवाद कार्य करने के लिए ये बहुत शांत है। श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ ठीक है, जब मेरे गुरु महाराज ने प्रस्थान किया तो मैं अकेला रह गया था, तो उन्होंने मेरी देखभाल के लिए कितने ही गुरु भेज दिए हैं। आप सब मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं। एक भक्त ने कहा, हम लोग गुरुदास हैं। प्रभुपाद ने कहा, तो आप मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं आपका बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। मुझे कभी कभी अपना बचपन याद हो आता है। मैं अपने पिता का बहुत अधिक लाडला पुत्र था। मैंने पुस्तक में से स्वीकार किया है, मेरे पिताजी बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मैं जो कुछ मांगता था वे मुझे देते थे। वे मुझे कभी दंड नहीं देते थे, केवल प्यार देते थे। तब मैंने मित्र बनाए और मेरा विवाह हुआ। कृष्ण की कृपा से मुझे हर एक प्यार करता था और मैं इस प्रदेश में बिना किसी जान पहचान के आया। अतः कृष्ण ने मुझे प्यार देने के लिए कई पिता भेजे। इस प्रकार मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अंत समय में अगर मैं शांतिपूर्वक रह रहा हूँ तो यह कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा से हर चीज संभव है, इसलिए हमें कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रहना है, तब हर चीज संभव होगी। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के 10 दिन के पड़ाव के बीच भक्तों में विजयोल्लास का भाव बना रहा। भक्तों को नगर पालिका से अनुमति मिल गई थी कि वे 5th एवेन्यू पर रथ यात्रा निकाल सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा था कि न्यूयॉर्क संसार का सबसे महत्वपूर्ण नगर है और एक गगनचुंबी इमारत संसार के लिए कृष्ण भावनामृत का दीप स्तंभ होगी। तो अब इस्कॉन के पास मनहट्टन में अपनी एक निजी गगनचुंबी इमारत थी। 5th एवेन्यू में रथ यात्रा निकालने की उन्हें अनुमति थी और प्रभुपाद स्वयं वहां उपस्थित थे। एक दिन सवेरे प्रभुपाद वहां गए जहां रथ तैयार हो रहे थे और जयानंद और उसके आदमियों ने उन्हें विशाल पहियों का उत्कृष्ट रूप दिखाया। जयानंद ने, जो श्वेत रक्तता कैंसर की बीमारी के अंतिम दौर में चल रहा था, रथ यात्रा के संगठन और रथों की तैयारी के पर्यवेक्षण में अपने आप को इस तरह निमग्न कर रखा था कि वह प्रभुपाद और सभी भक्तों का अत्यंत प्रिय बन गया था। प्रभुपाद सवेरे के भ्रमण के लिए कार से सेंट्रल पार्क जाया करते थे। परिचित बस्तियों से गुजरते हुए उन्हें 1965 ईस्वी और 1966 ईस्वी के दिन याद आते थे। एक दिन कीर्तनानंद स्वामी उनके साथ कार में गए। कीर्तनानंद ने कहा, मेरी सबसे अच्छी स्मृतियाँ उन प्रारंभिक दिनों की हैं श्रील प्रभुपाद, विशेषकर उन सवेरे की कक्षाओं की जब आप अपनी डेस्क के पीछे बैठते थे। सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश करती रहती थीं और आप 1 घंटे तक व्याख्यान देते रहते थे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, केवल हयग्रीव और तुम और प्रभुपाद और कीर्तनानंद ने उन प्रारंभिक दिनों के कुछ अन्य भक्तों को स्मरण किया। उमापति, कार्ल इयरजेंस, जिम ग्रीन, राय राम, सतस्वरूप, ब्रह्मानंद। प्रभुपाद ने कहा, उस समय कीर्तनानंद महाराज केवल 1 चपाती खाते थे। तमाल कृष्ण ने पूछा, और कुछ नहीं? प्रभुपाद ने कहा, मैं देना चाहता था किंतु वे 1 लेते या 2, बस बाद में 1 दर्जन। और वो लड़का स्त्रीधीश
वो कम से कम 20 चपातियां खाता था। मैं कहता स्त्रीधीश क्या और दूं? वो कहता हाँ। मैं 4 देता और वो चारों खत्म कर देता। मैं फिर 4 देता। कीर्तनानंद ने कहा आरंभ में हम सभी प्रभुपाद की प्लेट से खाते थे। प्रसाद की एक प्लेट होती थी और प्रभुपाद उसमें से थोड़ा थोड़ा हर एक को देते थे और हर एक संतुष्ट हो जाता था। प्रभुपाद ने कहा मैं कुछ प्रसाद रखा करता था, जो कोई आता मैं उसको प्रसाद दे देता था। कीर्तनानंद ने स्मरण किया कक्षा के बाद आप हमेशा प्रसाद बांटते थे, कीर्तन और कक्षा के बाद? प्रभुपाद ने कहा हाँ, मैं ताली बजाता था। बैठक में मैं 6000 से कम नहीं इकट्ठा किया करता था और $20 से अधिक भी नहीं, सप्ताह में 3 बार। क्षमा करना, प्रभुपाद ने बैठक में मैं $6 से कम नहीं इकट्ठा किया करता था और $20 से अधिक भी नहीं, सप्ताह में 3 बार। यद्यपि प्रभुपाद के लिए ये विजय की बात थी कि उनके संघर्ष के प्रारंभिक दिन बीत चुके थे, किंतु वे जब उन्हें याद करते थे तो एक विशेष प्रकार की मधुर स्मृति में डूब जाते थे। उनके मनोभाव बदलते रहते थे और कभी कभी भी उनको मिला देते थे। असहाय अवस्था के दिन, कृष्ण पर नितांत निर्भरता के दिन, जब उनके साथ कोई नहीं था, और उनका वर्तमान परितोष का समय, जब वे सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों से घिरे थे, बीते हुए दिनों का स्मरण करते हुए उनके मूल लक्ष्य का अनुभव हो रहा था कि हमारे विश्वव्यापी प्रचार का दीप स्तंभ इस्कॉन न्यूयॉर्क होगा। सायंकाल में जब सूर्यास्त हो रहा होता था, शिला प्रभुपाद को गगनचुंबी इमारत की छत पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और उनके शिष्य उनके साथ बैठा करते थे। यद्यपि इमारत मिड टाउन में स्थित थी, पर चूंकि वह वेस्ट साइड में थी, इसलिए मध्य मैनहट्टन की तीव्रता से दूर होने का अनुभव कराती थी। प्रभुपाद मैनहट्टन के क्षितिज की ओर निहारा करते थे और हडसन नदी से चलने वाली ठंडी बयार जुलाई की गर्मी कम कर देती थी। एक दिन संध्या समय कुछ शिष्यों ने नगर में चल रहे कुछ जघन्य कार्यकलापों का शिला प्रभुपाद से जिक्र किया। उन्होंने उन्हें वेश्यावृत्ति, अश्लील चित्रण, निरंकुश अपराध जनित हिंसा और मांसाहारी लोगों की विचित्र प्रेत पूजा और सनकों के बारे में बताया, जिसमें मानवीय भ्रूण का खाना भी सम्मिलित था। प्रभुपाद ने कहा इसका अर्थ यह हुआ कि हम वास्तव में पशुओं में प्रचार कर रहे हैं। एक रात छत पर रामेश्वर स्वामी ने शिला प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत के माध्यम से विश्व को जीतने की अपनी योजना उद्घाटित करने को कहा। प्रभुपाद मौन हो गए। अंत में उन्होंने कहा नहीं, यदि मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बता दूं तो वे बिगड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास योजना तो है, किंतु वे अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। ये क्या बोला? विश्व की रामेश्वर ने क्या पूछा? रामेश्वर स्वामी ने शिला प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत के माध्यम से विश्व को जीतने की अपनी योजना उद्घाटित करने को कहा। हाँ, और प्रभुपाद जी ने बोला, और प्रभुपाद मौन हो गए। अंत में उन्होंने कहा नहीं, यदि मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बता दूं तो वे बिगड़ सकती हैं। उन्होंने कहा उनके पास योजना तो है, किंतु वे अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। बोलो। प्रभुपाद जी बोले हम तैयार नहीं है, विश्व को जीत सकते हैं, मगर हम लोग तैयार नहीं। उस दिन में बोला है, ठीक है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो काफी साल हो गया ना, तो अभी प्रभुपाद जी के प्लान क्या बोले, इज इट बिकमिंग रिवील्ड? अभी प्रभुपाद जी के प्लान रिवील प्रकट प्रभुपाद जी के प्लान प्रकट हो रहा है कि क्या? प्रभु जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा, कर्मी और असुरिक लोग, उनमें यूनिटी और कोऑपरेशन है? कर्मी लोग, असुरिक लोग कोऑपरेट करते हैं? हाँ, क्या कोऑपरेट फॉर, ठीक है, they cooperate for sense gratification. Krishna's sense gratification. Huh? Krishnendriya Preeti? Huh? Actual, if you go deeper,
that cooperation is superficial because they will fight. सुंदा उपसुंदा का कहानी पता है आपने? सुना है? सुंदा उपसुंदा का क्या कहानी है? They were very close. So how Vishnu defeated them? They were attracted to same woman, both of them. And then they fought over her. So they destroyed each other. That is the power of pure devotion where, you know, we all heard about Navavidha Bhakti. But there is Navavidha Abhakti also. What? Or we can say Navavidha Nasha. What? So I will say in English and you can say it in Hindi. Okay? Name, fame, glory. बोलिए हिंदी में क्या है? Okay. Profit, adoration, distinction. Name, fame, glory is not labh. Profit, adoration, distinction is labh. Name, fame, glory is? Okay. Society, friendship and love. क्या है? How many of you have heard about this? I'm sure a few of you heard about this. Name, fame, glory, same old story. क्या है? But this can affect people who are trying to become better devotees. They also can get affected by this. Name, fame, glory, profit, adoration, distinction. What is the meaning of society, friendship and love? Why it is abhakti? Why it is nasha? What is wrong with society, friendship and love? If it is not in service to Krishna, unity and cooperation and agreement must be in service to Krishna, in harmony with service to Krishna. How many MNCs are in service to Krishna? Multinational corporations are in service to Krishna. Huh? They cannot be in service to Krishna. Even we cannot be in service to Krishna unless we overcome the 4 defects that every jiva has. What are the 4 defects every jiva has? हाँ बोलिए. हाँ, right. But with Guru, Sadhu and Shastra, you can overcome this. And they cannot overcome that. The very fact that there are different leaders at different ages propagating different things. China has completely changed from the times of Mao Zedong. China has totally changed. Same thing, Russia has totally changed. Different leaders come and they have different siddhanta. And after that, it's gone. Even in India, what was the goal of Indians before freedom and what is the goal of Indians now? It's very different. I don't know how many of you know it. The goal of Indians before freedom and the goal now is very different. I can give you one example. There is a place called Vallabh Vidyanagar near Baroda. It has got more than 30,000 students. And every billboard says, why are you studying in India when you can go to Australia? Why are you studying in India when you can go to New Zealand? At least people were going for work before. Now,
Even school students are told, don't study in India. Of course, Gandhi also said, quit India. भारत छोड़ो, क्या? They have a word in media called millennials. You heard that? Millennials? There's a lot of research going on about young people. So much research is going on about young people. Nowadays, it is called the big data. How many of you heard this word, big data? अभी आपको ज्योतिष के पास जाके आपका कुंडली निकालने की जरूरत नहीं, फेसबुक निकाल देगा आपका कुंडली। आप जो भी करते हो, अभी लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, क्या है? तो परमात्मा जैसा क्या कौन बोलता था, वो मैं भगवान को ढूंढा, मिला नहीं, पता नहीं वहां कहां छुप गया, लगता है मेरे हृदय के अंदर छुप गया, क्या? तो यदि हमको परमात्मा मिलते नहीं है तो कहां ढूंढना है परमात्मा को? टेक्नोलॉजी के अंदर छुपे हैं। परमात्मा कहां छुपे हैं? आप निगरानी में हैं, क्या? कौन सा निगरानी में है? इससे अच्छा हम परमात्मा का निगरानी में हो, क्या? यदि परमात्मा का निगरानी में नहीं है तो सीसीटीवी का निगरानी में। तो इस प्रकार आप बटन दबाएगा तो तुरंत आपका रिकॉर्ड हो जाता है, आपने क्या क्या कर रहे हैं। फैक्ट और नॉट? इट्स अ फैक्ट। तो टेक्नोलॉजी इज डूइंग द जॉब ऑफ परमात्मा। अनोरणीयान महतो महीयान, क्या है? बट वी वांट टू बी यूनाइटेड and in agreement and in harmony to achieve the greatest possible what is meant for all human beings, ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम, क्या है? How much time we have? So, can you give me some understanding about unity? What you considered Prabhupada meant by making unity in diversity? Can you give me some insights, some contribution from your side? How to make unity in diversity? Yes? Huh? By? Oh, okay. Very good, very good. Next. Why Prabhupada chose Mayapur? Yes. Okay. Now, unity in diversity, Mahaprabhu had already given a call, Prithiviti Achayata Nagaradigram. He had already given a call, Sarvatra Prachara Hoebe Maranam. In how many languages BBT books are published? What is the purpose? What is the purpose? To unite everyone
Actual happiness is only possible, what to speak of happiness, even peace. Ashantasya kuto sukham. So how to establish Shanti? What is the peace formula? Bhoktaram. So in English there is a word called consumer. हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ. So what is the difference between Bhokta and Upabhokta? Who is called Upabhokta? Ah. So wonderful thing is this. Yat karoshi yad dashnashi yad juhoshi dadashi yat tapasyashi konteya tat kurushva. So what do the MNCs do? Actually, Krishna said, if you don't offer your chapati and sabji to me, you are a sinful person and you are also a thief. Just for 2 chapatis and sabjis, Krishna is saying like that. But what do the MNCs do? So much land they take, so much electricity, so much water, so much petrol. Hira chor and Kira chor. What? So once one life membership was invited to come to Mayapur by some devotees in Mayapur. And at that time Prabhupada was there. So he was there walking around and this devotee introduced, this is such and such. So then Prabhupada asked that person, what do you do? So that person said, I have a factory in Calcutta producing glass. You know, glass like that. Then Prabhupada stopped and looked at him. And he said, you are a thief. The devotee was very disturbed. He said, no, Prabhupada said, you are a big thief. Prabhupada said, you are a big thief. The devotee was very disturbed. He said, Prabhupada, he is our life member. Then Prabhupada said, no, okay, you are a small thief. And why did he say? Because to make glass you need sand. And sand comes from where? Yeah. That is why Krishna says, Yat karoshi yad ashnasi, isavashyam idam sarvam. So unity among non-devotees is a myth. Because that unity is not going to last long. What about us? How long our unity will last? That depends on your consciousness. That is why we have this Purity is the Force board. Therefore, morning program, preaching, evening program, seminars, deity worship, prasadam distribution. Prabhupada has given hundreds of engagements for every variety of devotee, for every age, man or woman, young or old, educated, not educated, rich or poor, Indian or foreigner. Yuktasya bhaktanscha niyunjatopi Vande Guru Sri Charanara. Kamsa also sent so many demons to kill Krishna. All demons were surrendered to Kamsa.
All demons were? Kamsa himself is a big MNC. But Krishna defeats. Ishwaroham, aham bogi, siddhoham, balavan, sukhi. This mentality they cannot avoid. So all their arguments are superficial. All their varieties are superficial. There is no harmony. Ugra karma. क्या है? Even worshipping the demigods, Prabhupada says, is not a good idea. Because worshipping the demigods for is one's own selfish purpose, sense gratification. Avidhi purvakam. Suddha bhakta charana renu bhajana anukula bhakta seva parama siddhi. That MNCs cannot get. MNCs cannot get parama siddhi. Bhakta seva parama siddhi. Love. Premalati karamula. How much time we have? 5-10 minutes. Okay. So, प्रभु जी, कुछ आप बोल सकते हैं? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा और गहराई से विश्लेषण किया कि जो आंदोलन है प्रभुपाद ने स्थापित किया है तो ये किस लिए किया है। और जब तक कृष्ण को केंद्र हम नहीं बनाते हैं तब तक हम एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं सूत्रे मणिगणा एव कि मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, कि जैसे माला है तो माला के अंदर जो धागा है, तो जब सब धागा जो है माला मतलब धागे में सब फूल पिरोए हैं तो ये फूल एक साथ हैं। और जैसे ये धागा ना रहे तो फूल एक साथ नहीं रह सकते हैं, सब इधर उधर हो जाएंगे, एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें कृष्ण को केंद्र बनाना पड़ेगा। बड़े जो है कीमती मोती होते हैं और वो जो है एक हार बन जाता है, मोतियों का हार बन जाता है, बड़े कीमती हैं। लेकिन अंदर जो धागा है वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वही जो है उन मोतियों को साथ साथ रखता है। और अगर धागा टूट गया तो मोती बिखर जाएंगे, अब एक साथ नहीं मिलेंगे और कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं और फिर कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्व का परिदेवना, सब लापता हो जाएंगे ना। तो केवल इस जीवन काल में एक दूसरे से हम मिले हैं और इस जीवन के बाद में सब अलग अलग गतियों में जाएंगे, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कृष्ण को केंद्र बनाते हैं तो एक साथ हम जो है इस जीवन के बाद भी कृष्ण के साथ रहेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक साथ भक्तों के साथ में प्रभुपाद थे और एक बम फटा था तो भक्त लोग जो है डर गए। तो प्रभुपाद ने कहा तो लोग क्यों डर रहे हो, अगर हम लोग शरीर छोड़ेंगे बम फटेगा तो हम सब लोग एक साथ गोलोक धाम में चले जाएंगे। हरि बोल। तो ये जो प्रभुपाद ने जो बनाई है संस्था, ये एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ने के लिए बनाई है कि कभी भी हम अलग नहीं होंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। तो अगर हम कृष्ण को केंद्र बनाते हैं तो हम जो है एक साथ रह सकते हैं। और कृष्ण को केंद्र नहीं बनाया, अपने को केंद्र बनाया तो बस वो मोती बड़े कीमती मोती हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चलेगा, कोई भी एक मोती दूसरे मोती से जुड़ नहीं सकता है ना। तो ये जो है मतलब सिद्धांत है कि अगर हम कृष्ण
की भक्ति करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मतलब इतने हम लोग कमज़ोर दिमाग के हैं कि भगवान को बार बार मत शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। मत मना भव, फिर मद भक्तो, एक बार कहने से काम नहीं चलता। कृष्ण कहते हैं मुझमें मन लगाओ, फिर कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो। क्यों बार बार मत मत शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं कृष्ण? क्योंकि कृष्ण को अगर हमने केंद्र नहीं बनाया और अपने को केंद्र बनाया, नहीं नहीं हम तो अपने भक्त बनेंगे, हम तो इनके भक्त बनेंगे, हम तो इनके भक्त बनेंगे, तो फिर गायब लापता हो जाएंगे। आपका जो है कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। जैसे तिनका को माया उड़ा, आंधी जो है तिनके को उड़ा देती है तो तिनके का पता नहीं चलता है। उसी प्रकार माया की आंधी से आप उड़ करके कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। कृष्ण को केंद्र बनाते हैं, कृष्ण के भक्त बनते हैं, कृष्ण की ही पूजा करते हैं, कृष्ण को ही नमस्कार करते हैं, तो फिर क्या होगा? आप हमेशा कृष्ण के साथ रहेंगे तो एक साथ भी रहेंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे। तो हम कृष्ण के साथ रहेंगे तो सब एक साथ रह सकते हैं। और कृष्ण को अगर हमने केंद्र नहीं बनाया तो फिर आपका जो है कुछ भी पता नहीं चलेगा, लापता। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबके लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद लीलामृत की जय, गौर प्रेमानंदे जय, राधा पारसारथी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण की जय, गौर निताई की जय।